Hello students, welcome in English class. Today is fifth chapter, the ailing planet, the green movement role. It is the article written by Nani Palkiwala. The chapter depend on green revolution and much more depend on the natural facts and sustainable development. Okay, nature is everything for us and we are living the earth planet whatever going to decrease its quality day by day, so we have to much more careful about it and we should think about it much more, how to keep it fresh and how to keep it clean. Okay, green and clean, it should be our aim for the saving the planet earth. The meaning of the chapter is ailing planet. Ailing means sickness, illness, the ill condition of the planet earth. Okay, how to recover the health of our planet. And the green movement, what is the role of green movement, green revolution, everything given in this chapter. Okay, so the following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. ये जो जनरल एंट्री है आर्टिकल राइटिंग जो पब्लिश्ड हुई है, नैनी पालकीवाला ने इसको पब्लिश करवाया है इंडियन एक्सप्रेस में, मैगजीन में 24 नवंबर 1994 में, और इसका इश्यू है regarding the declining health of earth planet. Continue, and we have to think about it. We have to recover the health of the earth because our existence on that and we are living on this planet, it's our responsibility. Okay, so students, let's start the chapter. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement. One cannot recall any moment means कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं हुआ है इन वर्ल्ड हिस्ट्री, हमारे विश्व के इतिहास में, जो कि इसके बारे में हो विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ इंटायर ह्यूमन रेस, संपूर्ण जाति, संपूर्ण मानव जाति को ध्यान में रख करके जो बना हो, ऐसा कोई आंदोलन अगर है तो वो है अगेंस्ट टू पॉल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन. ओके, मीन्स पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, केवल एक कंट्री की नहीं है. ओके, so whole the human race are influenced and affected by it, and we should completely rapidly means come in force for prevention of pollution and for the running the green revolution which started, जो कि स्टार्ट हुआ nearly 25 years ago in 1972. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी समय प्रोटेक्ट हुई थी. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो एक्ट था उसी समय पास हुआ था 1972 में. ओके, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. ये जो संपूर्ण विश्व के लिए सोचने के लिए एक पार्टी फाउंड की गई न्यूजीलैंड में. ओके, सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से आज तक वो मूवमेंट पीछे नहीं गया, आगे चलता जा रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है. डे बाय डे इट्स टेकिंग वेरी वाइड फॉर्म दिस प्रॉब्लम. ओके, सो वी हैव टू मस्ट बी सीरियस अबाउट इट. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view
to a holistic and ecological view of the world. हमने शिफ्ट किया है और हम आशा करते हैं इसके बारे में कि जो मैकेनिस्टिक वर्ड है, जो व्यू है हमारा ओनली मनी माइंडेड, उससे दूर आकर के हमको अपने इकोलॉजी सिस्टम को भी मेंटेन करना है. ओके, हॉलिस्टिक इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इसको हमको इकोलॉजिकल व्यू में चेंज करना है. इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिलेशनरी एज दैट मीन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस, जैसा कि कॉपरनिकस ने इंट्रोड्यूस किया इसके बारे में. हु टॉट मैन काइंड इन द 16th सेंचुरी, जो मानव जाति को सिखा रहा है 16वीं सदी से ही. दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं वो सभी मिलकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, आपने देखा है मानव इतिहास में, देयर इज ए ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. वेरी नाइस. यू नो, नैनी पालकीवाला हियर एक्सप्रेसेस इन दिस essay about the importance of earth, existence of earth. We are living on earth, it's our native planet, so we have to think about it. And first time in human history we have seen about it, the growing worldwide consciousness. लोगों का कॉन्शियसनेस इसके बारे में ज़्यादा होता जा रहा है और लोग जान भी रहे हैं दैट द अर्थ इटसेल्फ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि पृथ्वी जो है वो एक जीवित प्लैनेट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बिकॉज ऑल द लिविंग क्रीचर्स, फ्लोरा, फाना एंड वाटर एनिमल्स, everyone is living on the earth surface, so life is present here. So earth is a living planet, living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. और यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम उसके भाग हैं, एक हम भी उसी के एक भाग हैं जो फ्लोरा फाना है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी जीवित हैं. तो इसका अपना एक अलग आवश्यकता है सब चीज़ों की. एंड द वाइटल प्रोसेस, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और जो प्रक्रिया है, प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. और इसकी इस जीवन की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में ध्यान दें और इसको प्रोटेक्ट करें, इसका प्रिजर्व करें. तभी हम आगे चल के जनरेशन टू जनरेशन अपने प्लैनेट को हैंड ओवर कर सकते हैं. अदरवाइज़ इट्स. थैंक्स फॉर टुडे.